ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवर्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्यय श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टः सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त अवतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागरसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Welcome once again, and you have been welcomed many times to Shri Vrindavan Dham. As Nitai Jivan Prabhu said, please pay attention for the next few minutes because we discuss something important. How many of you have come to Vrindavan for the first time? Okay. How many second time? How many first time with devotees? Like you may have visited Vrindavan earlier, but you are coming with devotees for the first time. Okay. So this is our biggest group for a yatra. In 2 days' time, we will be close to 260 devotees here as part of the various preaching programs that are under Sitaram Prabhu. So we have some devotees here from Attapur. How many devotees from Attapur? So Attapur is our new temple in Hyderabad, and over there, of course, Chaitanya Avatar Prabhu oversees that entire temple, and Sachinandan Prabhu is preaching, and
and we have our Ananta Achintya Prabhu and Shonak. They take care of all these boys who have come. So that is just so that all of you know where other people are. You see, हमारे प्रोग्राम में तो 30 लोग आते हैं, यहाँ पे 250 लोग कैसे आ गए? So just so that you know who others are. So boys from Attapur. Then we have boys from Surat. How many devotees from Surat? So our Ishan Gaur Prabhu preaches in NIT, SV NIT in Surat. NIT is one of the top engineering colleges. Many of our devotees, including Ishan Gaur Prabhu, are pass outs of Surat. So it's a successful project. And so he and Varun and who else is there? Praveen, right? So they take care of the preaching there. Then we have our temple which all of you have heard of, ISKCON Bhiwandi. No, which is known for what? Food for life. Food for life, Annadan, which we actually do. We actually distribute. If you come to Bhiwandi, you just ask anyone about ISKCON, they'll tell you, yeah, they come every day and give us prasad. They are a wonderful organization. So we do a lot of wonderful work there. So our Sri Sudama Prabhu has brought boys from Bhiwandi. How many devotees from Bhiwandi? Some congregation devotees also from Bhiwandi. So Sri Sudama Prabhu conducts preaching there. Then we have Nitai Jivan Prabhu, who has brought a lot of boys from Juhu. They have their regular programs in Juhu twice a week. Now they have youth preaching programs in Juhu. How many boys from Mumbai? Very nice. Then we have our Shanti Vardhan Prabhu. किधर? नहीं है. पिलर के पीछे. Narasimhadev. So Shanti Vardhan Prabhu has a very successful online preaching going on where more than 200 devotees join from Zoom, and he also has his class going on in Lokhandwala, and some devotees from his class have come. Then we have our Mahapati Ram Prabhu. Is here? Not here. He has also online preaching going on. Around 80 devotees are there. How many devotees from Mahapati Prabhu's group here? Few are there, few are coming. Then we have our Rupati Mataji, and her children's program goes on. She also oversees Vaishnavis, and they are there. And then we have, of course, our Saturday congregation, which is seasoned now for many years. They are there. So all this youth preaching which I mentioned, it is all overseen by our Chetan Avtar Prabhu. So he is involved in all these projects for youth preaching. And of course everything, including congregation preaching, children's program, is all under the care of Sitaram Prabhu. So he is the one who's guiding all the preachers. So we have around 10-12 preachers who are here. Everyone has 30-40 people, and they're all guided by Sitaram Prabhu. So this is our community of devotees. So in Vrindavan Dham, or in any dham when we go for a yatra, the most important thing, at least for me in so many years of coming for pilgrimage, I'll tell you a very not interesting, but rather sad and funny story, that when I first went on a yatra, I was just telling somebody, because today little inconvenience over here, check-in and room, some people like, some people don't like, little bit of, depends on how clean you keep your home. You'll find it not bad, or you'll find it little dirty. All depends on how clean you are. But when I first went to Mayapur, this was in 2008. I was 21 years old, and I had never gone to a holy place in my life before that. That's what a cultured family I came from. You have samskars, and then we have some scars. Scar, scar. So we have some scars from our loving upbringing of our family. So I had never been to any holy place, never stayed in the Dharamshala, and Sitaram told me, "Chalo, Mayapur, I'm taking some boys, you also come." So I said, "Okay, I can take 3-4 days off." I took a flight and reached there. And then he had arranged our stay in one guest house in Mayapur called Chaitanya Bhavan, which had common washroom.
and a room without any windows. So you told me, okay, 3 other boys are here. So जाओ इधर ही. I was thinking, oh my God. In my mind, from that point, I was just thinking, आज शाम को ही I'll go back to Kolkata. I'll take a flight. I'll make some बहाना. प्रभु जी मेरा पेट दुख रहा है या कुछ बॉस ने बुला लिया या something. And but I was very hungry, so I thought, okay, ठीक है, let me wait for lunch, Prasad, and then I will do that. So then somehow got ready in that common toilet bathroom. Somehow, first time in my life, and then went, took Prasad, and then Sitaram Prabhu was talking to me for our connection in at least for me and even for Nitai Madhav Prabhu. We never attended formal classes like this. It was just one-on-one with Sitaram Prabhu. Every Sunday we used to spend 2-3 hours with him, and that's how we developed our faith in Krishna consciousness and inclination to serve Prabhupada. It was his association. So he gave me some time again in the afternoon, and then he said, "Come with me at 4 o'clock. We will go for darshan of Radha Madhav." ठीक है, उसके बाद बोल दूंगा कि बॉस बुला रहे हैं, we'll go. I went, took darshan of Radha Madhav, Panchatattva, and then that was it. Then after that, it was like, okay, ठीक है, I'll stay. After 3 days, I was literally crying when I was going back to Calcutta. I was just thinking, my God, I don't want to leave this place. And what did we do in that time? Just followed the routine. Sitaram Prabhu would say, Mangal Aarti aao, we would be there in Mangal Aarti. From Mangal Aarti, we used to walk and go to Prabhupada's Samadhi, Pushpa Samadhi, sit there and chant. And we used to again walk back, 7 o'clock, Narsinghadev, Darshan Aarti, then Panchatattva, then Radha Madhav, then do the whole Guru Puja, then go take Prasad, and then whole day we used to have classes. Sitaram Prabhu used to arrange Atul Krishna Prabhu and various other devotees in Mayapur, Radhesham Prabhu, and used to have whole day classes. Evening again, just lunch, dinner, go off to sleep, next day again like that. And 3 days of that, just following the program, being in association of devotees, and I used to see, my God, I've never seen a world like this. ऐसे मैंने कभी दुनिया देखी नहीं है, जिसमें लोगों को खाली भक्ति की पड़ी है और कोई बात ही नहीं कर रहा है. कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई मूवीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई अपने परिवार के पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा है. सब खाली बात कर रहे हैं, इतना अच्छा लेक्चर था, ये पॉइंट अच्छा था, कितने सुंदर विग्रह हैं, राधा माधव कितने सुंदर लग रहे हैं, चलो समय है 10 मिनट, चलो एक और माला करते हैं. सब लोग कह रहे हैं धाम में माला करने का ज़्यादा बेनिफिट है, चलो 17वां राउंड करते हैं, 18वां राउंड करते हैं, 20th राउंड. अरे आपने 20 राउंड्स किया, कितना अच्छा है, एक और रसगुल्ला खाओ. तो 3 दिन ऐसा संग में रहने के बाद पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाता है. तो आप लोग सब यहाँ आए हैं. मैंने सडनली हिंदी में बात करने बोला कि मुझे याद आया कि मुझे कहा गया था कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करो. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा. तो आप लोग यहाँ पे आए हो, हम अभी गए, हमने मदन मोहन जी का दर्शन लिया, राधा दामोदर जी का दर्शन लिया, उसके साथ हमने 10,000 टोटो के हॉन्क्स का दर्शन लिया, हमने रास्ते में कूड़ा का दर्शन लिया, हमने डॉग्स का दर्शन लिया, हमने एंग्री लोगों का दर्शन लिया. ये सब क्योंकि ये भौतिक जगह है, ये सब जगह होगा. हम जहाँ रहते हैं मुंबई में, सूरत में, भिवंडी में, क्या ये सब नहीं है वहाँ पे? है ना? पर ये सब तो नहीं है. तो वी हैव टू बी हियर, वी शुड रिमेंबर व्हाई वी आर हियर, एंड देन वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑस्टेरिटी एज अवर प्यूरिफिकेशन. कभी कहीं लाइन है, जाने में दिक्कत हो रहा है, लोकल ब्रजवासी कभी कुछ परेशान कर सकते हैं, हॉकर्स आ जाएंगे, बेगर्स आ जाएंगे, क्या ये वृंदावन है ये? पर आप देखो इतने सारे महान वैष्णव जैसे दीनबंधु प्रभु, आप उनको मिलेंगे परसों, इतना बॉडीली डिफिकल्टी सहते हुए भी वो 40 साल से ब्रज में रह रहे हैं और उनको जाना नहीं है बाहर. हमारे आइंद्र प्रभु, कितने लोगों ने आइंद्र प्रभु का कीर्तन सुना है, रिकॉर्डिंग? आइंद्र प्रभु कभी वृंदावन के बाहर जाते ही नहीं थे. एक बार उनको दिल्ली जाना पड़ा उनका एक एल्बम का प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उनको लगा बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी है, जबकि वृंदावन में गर्मी में 50 डिग्री होता है और सर्दियों में 0 डिग्री तक जाता है, और यहाँ पे रेगुलरली पावर कट होता है. इतना सारा कष्ट सह के भी ये महान वैष्णव लोग यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल वृंदावन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बियॉन्ड द
things that we see. So that is real Vrindavan. जब हम अकेले आते हैं या हमारे फैमिली के साथ आते हैं तो हम वैसे एक्सपीरियंस कर नहीं पाते, बट व्हेन वी कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज देन वी कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस दैट. सो व्हाटएवर इनकन्वीनियंसेस वी फेस इन वृंदावन, वी शुड कंसिडर इट एज आवर प्यूरिफिकेशन. कैन एनीवन से हियर दैट आई एम एक्चुअली क्वालिफाइड टू एंटर वृंदावन धाम, कि मैं मेरे भक्ति के बल पर मैं धाम आया हूँ? कोई कह सकता? अगर हम सोच भी रहे हैं और अगर हम हाथ उठाना नहीं चाहते हैं तो हमें दोबारा सोचना चाहिए कि मेरा क्या क्वालिफिकेशन है होली धाम में आने का. आप सोचिए 5000 साल पहले जब यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं थे, सड़क नहीं थी, तो यहाँ कौन घूमता था? कृष्णा, बलराम, काउबर्ड बॉयज, गोपीज, मदर यशोदा, नंद बाबा, वो लोग यहाँ चलते थे. वो ब्रज का जो रज है, the sands, the soft sands of Vrindavan, they are those sands that the Supreme Lord and his associates have walked on. 500 साल पहले यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए. उन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल डिसाइपल्स जो गोस्वामी हैं, उनमें से मेन 2 रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन्होंने उनको कहा कि देखो ये कृष्ण की लीला स्थली है, पर क्योंकि 4,500 साल हो गए थे तो सब कवर्ड हो गया था, है ना. आप कभी देखेंगे कहीं कोई खाली प्लॉट है और अगर उस पर कोई कुछ कर नहीं रहा है तो क्या हो जाता है, वो ओवरग्रोन हो जाता है ना. वाइल्ड प्लांट्स उगने लगते हैं, बड़े बड़े ग्रास उगने लगते हैं, पूरा कवर्ड हो जाता है. तो 4,500 साल हो गए थे तो सब कवर्ड हो गया था. ये सारे पास टाइम्स, गिरिराज कहाँ था किसी को पता नहीं, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ था किसी को पता नहीं, निधिवन कहाँ था किसी को पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था. तो महाप्रभु ने सब दिखाया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, ये देखो ये गिरिराज है. फिर एक दिन उनको ले गए, बोलो ये देखो ये श्याम कुंड है, छोटा सा कुंड था. महाप्रभु गए, उन्होंने उसको और एक्सकवेट किया और बोला ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है. उन्होंने पर्सनली ये सारे जगह जाके बताया और फिर गोस्वामियों ने और रिसर्च करके बाकी सब लीला स्थली एस्टैब्लिश की. हम वो धाम में हैं जहाँ ये मान वैष्णव रहा करते थे. षड गोस्वामी अष्टकम, उसमें श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं कि सिर्फ गोस्वामी का पोजीशन क्या था, कोमंडलू और उनका कोपेन, और वो हर रात एक अलग पेड़ के नीचे रहते थे और क्या करते थे, नाना शास्त्र विचार नहीं कली पुनो सद्धर्म संस्थापका. सद्धर्म, इटर्नल धर्म. हम सबका इटर्नल धर्म क्या है? सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. ये सद्धर्म है और सद्धर्म संस्थापक हो, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए गोस्वामियों ने नाना शास्त्र विचारी ने अनेक ग्रंथ लिखे. कोई कह सकता है रूप गोस्वामी के 2 मेन स्क्रिप्चर कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, जिसको प्रभुपाद ने क्या टाइटल दिया? नेक्टर ऑफ डिवोशन. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? ठीक है, आप सबको एक यात्रा का टू डू लिस्ट है. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत छोटा किताब है, आपके वो गीता बेस पे भी है. इस यात्रा में आप अपने फ्री टाइम में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़िए. कितने लोग रेडी हैं एक्सेप्ट करने को? 100 पेज की किताब है. अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, कहीं और से आप टपक के आए हैं, स्मार्टफोन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको गारलेंड करेंगे. आप अपने जो प्रीचर है उनसे संपर्क करिए, वो आपको हार्ड कॉपी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का देंगे. अंग्रेजी में, हिंदी में, तेलुगु में अवेलेबल है. आप सब एक कॉपी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का रखिए, यहाँ सॉफ्ट कॉपी रखिए और अपने फ्री टाइम में पढ़िए. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये टाइटल से हमें क्या समझ आता है, इसके बुक के अंदर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन होंगे. किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन होंगे? नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शन होंगे. नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शन ये होता है जब कोई बोले ये असत्संग है, इसको त्यागो, ये लोगों से आप दूर रहो, वो एक्चुअली नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शन है. निंदा मत करो, ये नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शन. हमें लगा क्या बार बार बोलते हैं ये मत करो वो मत करो. अभी मैं भी बोलने वाला हूँ
7-8 चीज़ें यात्रा में, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, क्या है सब, डोंट 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 डोंट। पर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर कोई चीज़ हमें ना करने से हमें लाभ होता है, वो एक्चुअली एक नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दूसरे वर्स में सनातन रूप गोस्वामी बोलते हैं, बुरा संग त्यागो, बुरे लोगों से, जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं, उनसे दूर रहो, प्रजल्पा मत करो, अननेसेसरी चीज़ें मत करो। और तीसरे वर्स में बोलते हैं, उत्साह रखो, एंथुजियाज्म रखो, बी एंथुजियास्टिक, बी पेशेंट। तो वी हैव टू अप्लाई दीज क्वालिटीज इन द होली धाम एंड एवरी डे इन लाइफ। और अगर हम ऐसे रहें कि मैं यहाँ वृंदावन में आया हूँ या वृंदावन में आई हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, then we guarantee you, if you follow our program, you will be very very blissful. It will be a very nectarian opportunity for you. अभी आप एक और चीज सोचिए, हमारे फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की वृंदावन प्रभुपाद का एक मेन लीला स्थली है। आप में से कितने लोगों ने आज श्रील प्रभुपाद के समाधि का दर्शन लिया? राधा दामोदर में कितने लोग प्रभुपाद के रूम में गए? और प्रभुपाद का जो घर है ग्राउंड फ्लोर पे, वो गेस्ट हाउस बिल्डिंग में, कितने लोग ने आज दर्शन लिया वहाँ पे? ठीक है, आप लोग कल जाइएगा उधर। प्रभुपाद के इतने सारे पर्सनल आर्टिफैक्ट्स हैं जो प्रभुपाद ने यूज़ किया, और बहुत सारे टचिंग चीज़ें भी हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो एक जर्नल है, वो जर्नल प्रभुपाद के लास्ट 10 दिन इस दुनिया में, वो लास्ट 10 दिन में प्रभुपाद का ब्लड लेवल कितना था, उसका उनका ऑक्सीजन लेवल कितना था, उन्होंने कितना खाया था, उनके डिसाइपल्स ने पूरा एक जर्नल मेंटेन किया है। फिर प्रभुपाद का लास्ट सोप, लास्ट वैसलीन का डब्बा, लास्ट शेविंग किट, प्रभुपाद के कुछ बाल, प्रभुपाद का क्लॉथ, प्रभुपाद का टाइपराइटर, प्रभुपाद का डिक्टाफोन, प्रभुपाद का हैंड रिटन लेटर्स जो प्रभुपाद ने 60s में 70s में लिखे थे, प्रभुपाद का हैंड रिटन बैक टू गॉडेड मैगजीन भी है वहाँ पर, तो आप सब जाके वो देख सकते हैं। तो एक आचार्य जो होता है वो 3 जगह पे प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश्ड होता है। आप बता सकते हैं कौन से 3 जगह हैं? बर्थ प्लेस, इंस्ट्रक्शंस एंड समाधि। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद का समाधि है, श्रीला प्रभुपाद इज प्रेजेंट देयर। When we enter Srila Prabhupada Samadhi Mandir, we should not just be like how we are when we bow down to Prabhupada in the temple. Prabhupada is present there. Prabhupada का समाधि मंदिर है वो। तो हमें वो मूड से जाना चाहिए कि प्रभुपाद, I am not qualified to come here. I am not qualified to be in Vrindavan. Let alone, I am not even qualified to perform devotional service in Bhiwandi or Attapur or Mumbai. It is only because of you that I am able to do. आप सबको किसी ने भक्त बनाया, आप सबको किसी ने किताब दिया, किसका किताब था? प्रभुपाद का किताब था। और जो भक्तों ने आपको भक्त बनाया प्रचार करके, वो प्रचार वो कहाँ से सीखे? प्रभुपाद जी से सीखे, या किसी ने उनको सिखाया जिन्होंने प्रभुपाद से सीखा। ये जो संस्था है इस्कॉन, प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया। अगर प्रभुपाद इस्कॉन नहीं इस्टेब्लिश करते, अगर हमारे अंदर थोड़ा कीड़ा भी आता भक्ति करने का, हम कहाँ जाते? हमें भी गोस्वामियों की तरह वृंदावन में आके एक एक झाड़ के नीचे रहना पड़ता था। 1970 के पहले वृंदावन वॉज नोन एज अ स्लीपिंग टाउन। कोई नहीं आता था यहाँ पे। 5000 मंदिर थे, कोई नहीं आता था। कई सारे मंदिर में वो ड्रेस 2 महीने में एक बार चेंज करते थे, भगवान का ड्रेस। हमारे इस्कॉन मंदिर में कितनी बार चेंज होता है? दिन में 2 बार। वो लोग 2 महीने में एक बार ड्रेस चेंज करते थे। फिर प्रभुपाद ने कृष्णा बलराम मंदिर का स्थापना किया, फिर सारे लोग जाने लगे वहीं पे। भगवान का प्रेजेंस है अंदर, फील होता है। फिर बाकी सब मंदिरों ने शुरू किया। बाकी बिहारी मंदिर जो भी बहुत पॉपुलर है, कोई नहीं जाता था वहाँ पे, कोई वृंदावन आता ही नहीं था। प्रभुपाद के वजह से लोग वृंदावन में आने लगे, प्रभुपाद के वजह से सब लोग भक्त बने। और फिर बाकी लोगों ने भी सोचा चलो हम भी ड्रेस चेंज करेंगे तो हमारे मंदिरों में भी लोग आएंगे। फिर लोग जाने लगे, फिर दिल्ली विल्ली से लोग आते हैं, सब बाकी बिहारी है वो। बट
if you know any actual place where you can see devotion, that is Prabhupada's temple. Anywhere in the world, especially in Vrindavan. So Prabhupada, Samadhi is here. Not only Samadhi, जब प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि अभी मुझे गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, घर छोड़ना है, प्रभुपाद ने क्यों उनको ये प्रेरणा थी घर छोड़ने की? उनको क्यों घर छोड़ना था? उनके गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन था. क्या इंस्ट्रक्शन था? इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स. ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन था. पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? You look like an educated person. You should preach the message of Lord Chaitanya in the English language all over the world. और ये कितने दिन या हफ्ते या महीने या साल के बाद भक्तिसिद्धांत ने प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया? फर्स्ट मीटिंग में पूरे लेक्चर के बाद, अच्छे से 2 घंटे का लेक्चर देके कन्विंस करने के बाद, 5 सेकंड में देखा उन्होंने. प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने दंडवत किया. प्रभुपाद ने बोला, बिफोर आई कुड इवन लिफ्ट माई हेड अप आफ्टर पेइंग ओबेसेंसेस, भक्तिसिद्धांत पॉइंटेड एट मी एंड सेड, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, यू शुड प्रीच लॉर्ड चैतन्य's मैसेज. प्रभुपाद ने इसको अपना लाइफ बनाया. आप में से कितने लोगों को आपके प्रीचर से कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन मिलता है? मिलता है ना? सबको मिलता है. हम लोग में से कितने लोग हैं जो वो मूड से उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं? अभी वृंदावन धाम में हम प्रेरणा ले सकते हैं प्रभुपाद से, हम प्रे कर सकते हैं प्रभुपाद को. प्रभुपाद, आपने वो पहले इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ बनाया. आप मुझे मर्जी दीजिए कि ये जो मुझे छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, मैं उसको अपना लाइफ बनाऊं, मैं उसको फॉलो करूं. ये है वृंदावन. तो प्रभुपाद ने वानप्रस्थ लेके प्रभुपाद आए वृंदावन में. और ये जो राधा दामोदर मंदिर है, पहले प्रभुपाद एक दूसरे मंदिर में रहते थे. फिर 1959 से 1965 तक प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे. आप सबने रूम्स देखे प्रभुपाद के? बहुत स्पेशियस, लग्जूरियस थे. छोटा सा एक कमरा, लो सीलिंग के साथ. अभी तो ठीक है, वेदर अच्छा है. अब गर्मी में आइए, 5 मिनट वो रूम में कोई बैठ नहीं सकता है, इतना गर्म होता है. और प्रभुपाद 6 साल रहे वहाँ पे. और तब तो कोई पंखा नहीं, कोई 24 आवर लाइट नहीं, कुछ नहीं. क्यों प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि उनको राधा दामोदर मंदिर में रहना है? रूप गोस्वामी का समाधि है वहां पर. मैं आप लोग को एक कुछ पढ़ाना चाहता हूँ. ये प्रभुपाद का लेटर है. प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, Those who stay in Radha Damodar temple will realize that Rupa Goswami, Kaviraj Goswami and Jiva Goswami are literally living there. And if an is actually advancing in the spiritual field, they can take the instructions from the acharyas living there. It is up to the individual, Suniya, it is up to the individual how they realize this by devotional service. By staying in Vrindavan, you will realize how pure the dham is. The environment itself gives a higher taste of consciousness. Radha Damodar is there and the great Acharya Samadhis are there. There cannot be any other better place to live than Vrindavan Dham. It is the center of the spiritual world. I eternally reside in my rooms at the Radha Damodar temple. So Prabhupada is present here. Prabhupada wrote the first canto of Srimad Bhagavatam in Radha Damodar temple. कितने लोगों ने फर्स्ट कैंटो थोड़ा बहुत पढ़ा है? पहला श्लोक पढ़ा है? प्रभुपाद ने पूरा मनन किया था वहां पे कि मुझे भक्तिसिद्धांत ने बोला है वेस्ट में जाना है एंड आई नीड टू टेक समथिंग विथ मी, सो आई विल राइट कॉमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम. एंड फॉर 6 years ही स्टेड इन वृंदावन धाम एंड रोट द फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम. हमें पता है प्रभुपाद ने कितना कठिनाई लिया था. प्रभुपाद खुद कलेक्शन करते थे, प्रभुपाद खुद लिखते थे, प्रभुपाद खुद अपना कुकिंग करते थे, प्रभुपाद खुद प्रिंटर के पास जाते थे, प्रूफ रीड करते थे, टाइप करते थे, दोबारा प्रूफ रीड करते थे. प्रिंटेड बुक आने के बाद प्रभुपाद और क्या करते थे? उसको खुद जाके बांटते थे दिल्ली में. और कितनी बार प्रभुपाद फेंट हुए क्योंकि उनके पास
न्यूट्रिशन नहीं था अच्छा, क्योंकि ही हैड नो मनी। जितना भी लक्ष्मी प्रभुपाद के पास आता था यहाँ वहाँ से, सबको वो बुक प्रिंटिंग में डालते थे। दिस इज आवर प्रभुपाद एंड ही डिड ऑल दैट इन श्री वृंदावन धाम। यहाँ बैठ के उन्होंने पूरा फर्स्ट कैंटो लिखा। फिर जब प्रभुपाद यहीं से उन्होंने पूरा प्रिपेयर करके वो विदेश गए, और फिर 1970 में अपने 50 विदेशी भक्तों को लेके दोबारा वृंदावन आए, एंड दैट वाज लाइक प्रभुपाद्स विक्ट्री परेड। तब सब गोस्वामियों ने और सबने कहा हाँ ये महान वैष्णव है। गोरों को इन्होंने भक्त बनाया, अमेरिकी लोगों को, यूरोपियन लोगों को इन्होंने भक्त बनाया। तो फिर प्रभुपाद ने डिसाइड किया मेरे भक्तों के लिए भी यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो एक बहुत ही पायस लेडी थी, उसका नाम था मिसेस सरफ। तो मिसेस सरफ प्रभुपाद की बहुत सिंपैथेटिक थी, तो टुवर्ड्स प्रभुपाद शी वाज वेरी सिंपैथेटिक। तो उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे हस्बैंड का एक लैंड है रमन रेती में। उस समय 1972 में वृंदावन शुरू होता था राधा दामोदर मंदिर से। ये सब जंगल था, अभी अनुमान नहीं लगा सकते हम, पर ये सब जंगल था खाली। तो इस जंगल के बीच में मिसेस सराफ ने बोला कि स्वामी जी यहाँ रमन रेती में हमारी एक ज़मीन है और हम आपको देना चाहते हैं। उसमें भी बहुत कष्ट हुआ, फाइनली उन्होंने हैंड ओवर किया वो ज़मीन, इस्कॉन को उन्होंने डोनेट किया। और फिर प्रभुपाद ने अपने विदेशी भक्तों के साथ, अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे ना, कुछ खरीदने जाएंगे, कुछ करेंगे, अगर आप कोई MRP वाला प्रोडक्ट नहीं लेंगे आपको ज़रूर लोग ठगेंगे, कोई सस्ता चीज़ महंगे में बेचेंगे। एनीवन फ्रॉम यूपी डोंट माइंड, पर वो थोड़ा ब्लड है वैसा। उस समय प्रभुपाद के सिर्फ विदेशी भक्त थे और उनसे प्रभुपाद ने ये पूरा मंदिर बनाया। दिस एंटायर टेम्पल वॉज मेड ओनली विद प्रभुपाद्स अमेरिकन एंड यूरोपियन डिसाइपल्स, एंड दैट ऑल्सो उनका उम्र क्या था, आप लोग के उम्र के जैसे। यहाँ पे 25 साल के नीचे कितने लोग हैं, बॉयज गर्ल्स 25 साल से नीचे। आप सोचो कि आप लोग सब ने ही मिलके, अगर आप लोग को कहा गया कि ये लो जमीन बनाओ, और भारत में नहीं, आपको किधर टैंजानिया या किधर भेज दिया, और वहाँ आपकी कोई भाषा समझेगा नहीं, आपको देख के लोग सोचेंगे, आप सोचेंगे कि ये लोग अजीब है, वो सोचेंगे आप अजीब हो, आपको वहाँ पानी नहीं जमेगा, आपका वहाँ खाना नहीं जमेगा, और आपको बोला गया है कि 3 साल में मंदिर बनाओ। हो पाएगा? प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के गाइडेंस से कर दिया, और 1975 रामनवमी के दिन कृष्णा बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ। प्रभुपाद की एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे घर में इतना बड़ा पोस्टर बना के मैंने उसको फ्रेम किया। प्रभुपाद पहला आरती दे रहे हैं कृष्णा बलराम को, और वो आरती देने के बाद फिर पुजारी कैसे दिखाते हैं, तो प्रभुपाद ऐसे मुड़ते हैं और ऐसे करके सबको दिखाते हैं, और एक बड़ा स्माइल है उनके फेस में। तो इट इज लाइक इट इज डन, वी हैव अचीव्ड दिस विक्ट्री फॉर कृष्णा, वी वांट टू ग्लोरीफाई कृष्णा बलराम, एंड टुडे द टेम्पल इज इनॉग्रेटेड। नाउ अभी 10,000 ईयर्स तक लोग आके कृष्णा बलराम के ग्लोरीज देखेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे इतना वो रहे हैं वृंदावन में, कृष्णा बलराम मंदिर में, इतना उन्होंने यहाँ से वर्ल्ड वाइड लेटर्स लिखते थे, सब डिवोटीज को गाइड करते थे, और इतना उन्होंने अपना समय यहाँ वृंदावन में बिताया है, और हम उस वृंदावन में हैं, रोज हम जाएंगे कृष्णा बलराम मंदिर, कितना हमारा गुड फॉर्चून है। फिर 1977 में जब प्रभुपाद का हेल्थ जाने लगा, तो प्रभुपाद ने बोला, इन द लास्ट 15 years आई हैव शोन यू हाउ टू लिव। हाउ टू लिव मीन्स माई लाइफ इज मेंट फॉर कृष्णा सर्विस बाय द ऑर्डर ऑफ द गुरु। माई लाइफ इज ओनली मेंट फॉर माई गुरु एंड फॉर कृष्णा, and I have to live in association of devotees. That is how to live. प्रभुपाद ने बोला, now I will show you how to die. और फिर अप्रैल में जुहू से प्रभुपाद आए वृंदावन, और फिर यहीं रुके। एक बार लंदन गए खाली, क्योंकि लंदन वाले लोगों ने 1976 का मैराथन, बुक मैराथन लंदन वालों ने जीता था, और प्रभुपाद जो मैराथन जीता था प्रभुपाद उसके मंदिर में जाते थे। तो जस्ट टू लिव अप टू हिज वर्ड एंड गिव देम इंस्पिरेशन, प्रभुपाद लंदन गए। शरीर ही नहीं बचा था उनका, फिर भी वो गए। फिर वापस आए यहाँ पे जून में, और जून से नवंबर तक प्रभुपाद यहाँ थे। और 14 नवंबर 1977 at 7:30 PM प्रभुपाद entered the eternal pastimes of the Lord in वृंदावन धाम, और यहाँ पर उन्होंने समाधि लिया। प्रभुपाद के रूम में आप कल जाना,
वहाँ पे ही एक बेड है, और बेड के बगल में जो वॉल है वहाँ पे एक फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ में देखोगे आप तो प्रभुपाद लेटे हुए हैं, पूरे हड्डी है, और प्रभुपाद क्या कर रहे हैं वहाँ पे? भागवतम डिक्टेट कर रहे हैं। उनके डिसाइपल्स उनके मुंह के सामने डिक्टाफोन रख रहे हैं और ऐसे करके सुन रहे हैं और फिर टाइप कर रहे हैं टिल द सेकेंड लास्ट डे। ऑल्दो प्रभुपाद वाज बॉडी वाज ओवर, जो वैद्य थे और जो मेडिकल मॉडर्न डॉक्टर थे दोनों आके बोल रहे थे इट इज इम्पॉसिबल दैट दिस मैन इज स्टिल अलाइव, फ्रॉम ऑल वाइटल्स ही शुड हैव लेफ्ट लॉन्ग टाइम बैक। प्रभुपाद रुके और उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला, वो लास्ट चैप्टर था जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया। सो प्रभुपाद शोड दिस इज हाउ टू डाई इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज व्हाइल डूइंग आवर सर्विस। हाउ टू लिव, हाउ टू डाई, दोनों प्रभुपाद ने वृंदावन में दिखाया। हाउ टू लिव, राधा दामोदर मंदिर में ऑस्टेरिटी लेके 6 साल रहे और गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, भागवतम लिखा। वृंदावन से उन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग शुरू किया। वृंदावन में उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे उन्होंने अपने भक्तों को बुला के ट्रेन किया वैदिक कल्चर में। एंड हाउ टू डाई, सेवा करते करते भक्तों के संग में उन्होंने फियरलेसली अपना शरीर छोड़ा। और हम उस वृंदावन धाम में हैं कार्तिक के महीने में। So this is our good fortune. Over the next 10 days or how many ever days we are here in the Dham, let us always remember what sacrifice Prabhupada has done and what is my qualification. And through that, let me tolerate whatever chota mota inconveniences are there. Okay? Because this is the place we are in. You will hear more. आप और सुनेंगे वृंदावन धाम के बारे में अगले 10 दिनों में। महान वैष्णव सन्यासीज है, प्रभुपाद डिसाइपल्स है, बहुत सारे अमेजिंग डिवोटीज आके प्रीच करेंगे। कई बार शाम को सीताराम प्रभु क्लास देंगे, आप और सुनेंगे, पर ये मूड से सुनिए। वी हैव टू सी वृंदावन थ्रू आवर ईयर्स, नॉट थ्रू आवर आईज। व्हेन वी गो आउट, वेयरएवर वी गो, ट्राई टू बी इन द ग्रुप। एक साथ रहिए, सेल्फीज मत लेते रहिएगा। आपको फोटो लेना भी है ना, तो जो होली प्लेस है उसका फोटो लो, या एक ग्रुप का फोटो लो सब भक्तों का। खुद के फोटोज मत लेते रहो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी फोटो में। आपके अलावा पूरे दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके फोटो में। और हमें क्यों इंटरेस्ट है हमारे फोटो में? ये हमारा अहंकार है। सेल्फी में टाइम वेस्ट मत करो, ग्रुप आगे बढ़ जाएगा, हम खोजते रहेंगे कहाँ है सब लोग। ग्रुप के साथ रहो, ग्रुप में हमेशा कीर्तन होगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन द कीर्तन, प्लीज सिंग इन कोरस एंथुसियास्टिकली, एंड इन दिस वे हैव अ वेरी ब्लिसफुल यात्रा। Please associate with each other. Boys, men, please associate with each other. Matajis, please associate with each other. And develop this mood that I am part of a big community of devotees. In this way, we can have a very good yatra. Also, our mood in the yatra should also be to help other devotees. कभी कोई बीमार है, उसके लिए कुछ ले आइए, किसी को पानी चाहिए, कुछ हेल्प कीजिए। धाम में भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। कभी कोई बस में चढ़ रहा है, दूसरों को चढ़ने दीजिए, उतर रहे हैं, दूसरों को उतरने दीजिए। लेट अस हैव दैट कोऑपरेटिव स्पिरिट। लेट अस अवॉइड सोशल मीडिया। अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करते मत रहना दिन में 10 बार। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या जो भी दूसरे सोशल मीडिया चैनल पे हैं आप, वो सब बंद कर दो। जितने दिन आप यात्रा में हो, आपका ट्राई टू कट ऑफ योर मटीरियल लाइफ। We are here we are here to contemplate how we can improve our spiritual life. That is the only reason why we should be in Vrindavan Dham. So stock market, boss, business, सासू माँ, मम्मी, पापा, भैया, दीदी, फ्रेंड्स, जितने दिन वृंदावन में ना उनको भूल जाओ। उनको खाली आपके प्रेयर में याद करना, कृष्णा बलराम के आगे जाके उनके लिए प्रार्थना करना। अदरवाइज दिस इज योर फैमिली फॉर द नेक्स्ट 10 days। एंड लेट अस ऑल हैव वन गोल, आई एम हियर टू improve my spiritual life. I should take some inspiration from this yatra which will make me as a devotee better. I should go back to Attapur or Bhiwandi or Mumbai in a better attitude, as a better devotee.
How many of you are ready for this? Thank you very much. Also, as is our Vaishnav culture, we always do that. Matajis are with Matajis, Prabhus are with Prabhus, and we maintain a proper decorum that way, and that has to be maintained in the yatra also. The whole goal is I am here to improve myself as a devotee, and the people who can help me, I should associate with them. बाहर स्पेशली जब हम गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे, बरसाना में जाएंगे, प्लीज डोंट बैक आंसर एनी ब्रजवासी. वो आपको परेशान कर रहे हैं ना, उसको टॉलरेट कीजिए. कभी बोलिए मत हटो यहाँ से. दैट इज वेरी ऑफेंसिव. वो लोग सब धामवासी हैं, भले दिखते नहीं हो, उनके एक्टिविटी से लगता नहीं हो, हमें लगेगा कि हम उनसे बेटर हैं. वो धामवासी हैं, हम उनसे दूर रहें, बंदरों से दूर रहें. एंड जस्ट कपल ऑफ थिंग्स, प्लीज बी केयरफुल ऑफ योर वैल्यूएबल्स. टुडे 3 devotees lost their mobile phones in Radha Damodar temple. और भी कोई? 3 devotees lost their mobile phones. 1 devotee lost her purse. 1 devotee lost his specs. So 2 devotees lost their specs. 3 devotees lost their specs. Okay, और भी है तो ठीक है. समझ लो. So please take care of your mobile phone. Please take care of your valuables. Please take care of your specs. बिकॉज अभी ठीक है, मटीरियल वस्तु है, पर वो मटीरियल वस्तु अगर खो गई तो बहुत दिक्कत आपको ही होगा. सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट. डोंट बी फ्रिवलस. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज बी इन द राइट मूड, द राइट कॉन्शियसनेस ऑफ आई एम हियर टू एसोसिएट विद वैष्णवास, टू हियर फ्रॉम देम, टू फॉलो द प्रोग्राम एंड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ डिवोटी. When I go back, I should be a better devotee than what I came as. Okay? Anyone has any questions? And if you are having any trouble with any fellow devotee, please you can speak to your preacher. If you are having any trouble, you speak to your preacher. But be in a cooperative mood here. Okay? So does everyone have this band? Who doesn't have a band? Please raise your hand. If you don't have a band, please contact Shanti Vardhan Prabhu, and Shanti Vardhan Prabhu will give you a band. Without this band, tomorrow you will not be allowed to board the bus. You will not be given prasad. Right? So please wear a band. It is your identification. We know you through your band for the next few days. Tomorrow we are going to Barsana. श्रीमती राधा रानी की. बरसाना श्रीमती राधा रानी का धाम है, तो हमारा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, भक्तों की कृपा से हम जा रहे हैं बरसाना हम सब. तो हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे, क्योंकि अभी आजकल वेदर थोड़ा दोपहर को गर्म है. सो यू वर एडवाइज्ड बाय द डिवोटीज, आप लोग जल्दी जाके जल्दी वापस आइए. तो हम कल सुबह 6 बजे निकलेंगे. ठीक है, आप लोग सब रेडी हो जाइएगा. दोज हु everyone should get up and go for Mangal Aarti, but you can come back if you want. You can freshen up again. 6 बजे आप लोग रेडी होइए बरसाना जाने के लिए. हम बस कहाँ आएगा प्रभु जी? When? 9 बज गए. It will either be at चित्रकूट, जहाँ वो बड़े गणेश जी और हनुमान जी हैं, और it will be at राधे धाम, जहाँ आज जब हम आए थे, जहाँ बस रुकी थी. उनमें से एक जगह पे होगा. आपके ग्रुप में आप देखिए, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं. कोई नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे? ठीक है, जो नहीं है आप लोग संपर्क करो किसी के साथ, अपने आप को ऐड करो. सब अनाउंसमेंट्स वहाँ होंगे. कल सुबह हम 6 बजे निकलेंगे. एंड आवर शेड्यूल एवरी डे विल बी एज फॉलोज. एवरी मॉर्निंग वी विल गो. ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर मंगल आरती टू चैंट. इफ यू वांट, दोज हु आर स्पेशली स्टेइंग हियर, after Mangal Aarti we can all congregate here and chant also, because temple will be very packed. You will find out tomorrow. And then every morning between 6 and 7 a.m. we will leave for a different place. Tomorrow we are going to Barsana. Day after tomorrow we are going with Deen Bandhu Prabhu to Radha. The day after that we are going somewhere else. Then again we are going with Deen Bandhu Prabhu to Gokul. Then we are going to Bhandirvan. Every day we are going. Our Govardhan Parikrama will be on 28th. Giriraj Parikrama. 29th is Prabhupada's disappearance day. We will observe that festival here. So every day we will go.
Our breakfast will be in on the location. धाम में जहाँ भगवान अपने पास टाइम्स करते थे वहाँ हम प्रसाद पाएंगे भक्तों के साथ। इतना अच्छा सौभाग्य है हमारा। फिर हम आएंगे वापस बस में। दोपहर को यहाँ पे 1:30 बजे 2 बजे के बीच में लंच प्रसाद होगा इसी हॉल में। एंड देन आपको 2 घंटा 3 घंटा फ्री टाइम दिया जाएगा। फिर इवनिंग में अगेन देयर विल बी सम विजिट एंड देन 7 o'clock, टुडे वी वर लेट, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड 7 o'clock प्लीज कम हियर for evening katha. Tomorrow His Holiness Vrindavan Chandra Maharaj will be here. He is a wonderful Vaishnava, exalted devotee. He will speak in Hindi on the glories of Srimati Radharani. ऐसे रोज शाम को 7 बजे यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम होगा वैष्णवों का कथा। ठीक है, तो आप लोग सब जितने दिन आप लोग हैं प्लीज फॉलो द एंटायर प्रोग्राम। So now we'll have dinner prasad. Also all of you can volunteer for prasadam serving. You can contact our शांतिवर्धन प्रभु। प्रभु जी हाथ उठाइए। तो शांतिवर्धन प्रभु हैं, तो वो प्रसादम सेवा देख रहे हैं। तो आप लोग सब कोऑर्डिनेट कीजिए। माता जी कैन कॉन्टैक्ट रूपवती माता जी एंड प्लीज पार्टिसिपेट। यू शुड बी वेरी ईगर टू सर्व sadhus. Although we don't consider ourselves sadhus, but we should be eager to serve devotees in the dham. So please be eager to participate. Those who are working, you can also offer some donation for the yatra. You can sponsor the prasad. We have various sponsorships: 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. You could sponsor the prasad on one day, or a lot of benefit, and sponsor a devotee. And this way, let us all participate in doing lot of services in Vrindavan Dham. Shri Vrindavan Dham ki, revealer of the holy Dham, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Samaved Gaur Bhakta Vrind ki, Jai Nitai Gaur Premanande.